Okay, good morning, all of you. Now I'm going to continue my lecture of CNC, right? Computer Integrated Manufacturing. Okay, and so far we have studied about the MCU, how CNC had been derived, and all those things, right? So, in short, I will not explain much more. What is what is MCU? This is one of the very important, aspect of the computer system, aspect of the CNC, computer numerical control machine. Okay, so the machine control unit, I already told you, this is the heart of CNC machine. I said, okay, it is used to perform the following functions. What are those functions? I already told you they are having the DPU, data processing unit, and CLU. Okay, uh, okay. So these are the two important components by which it can be run. Okay. Before starting, I must tell you what are the various functions. What are the various functions associated with them? So I must tell you this will read the coded instruction. What they will do? They will read the coded instruction. Then decode the instructions. कोडेड इंस्ट्रक्शन को क्या करता है डिकोड कर देता है एंड देन इंप्लीमेंट इंटरपोलेशन आई मीन टू से यू linear circular and the helical movement to generate the axis motion of the command. Okay, feedback axis motions command to amplifier circuit for driving the axis and the mechanism. Okay, receive the feedback signal of the position and the speed of each of the drive axis. Implement the auxiliary control function such as the coolant on, coolant off, a spindle on, a spindle off. Okay, so these are the function of the MCU. I already told you MCU consists of the two main units. That is what the data processing unit DPU and the control loop unit CLU, right? तो डीपीयू का आपको पता है डीपीयू क्या करता है डिकोड करता है इंफॉर्मेशन को जो टेप से इंफॉर्मेशन मिलता है उसको डिकोड कर देता है उसको प्रोसेस करता है और प्रोवाइड कर देता है किसको सीएलयू को और सीएलयू क्या करता है हम पहले बता चुके हैं सीएलयू क्या करता है CLU क्या करता है ये क्या करता है दिस विल कंटेन द न्यू रिक्वायर्ड पोजीशन ऑफ ईच एक्सिस okay its direction of motion and you can say and velocity and actually control signal to relay तो बेसिकली जो अगर CLU को पूछा जाए तो CLU क्या करता है तो CLU प्रोवाइड करता है सिग्नल और अनाउंस करता है कि द प्रीवियस सेगमेंट वाज कंप्लीटेड एंड द DPU कैन रीड द न्यू ब्लॉक ऑफ द पार्ट प्रोग्राम मतलब समझ गए सीएलयू जो ऑपरेट करता है वो किसको ऑपरेट करता है ड्राइव को अटैच करता है जो मशीन के ऊपर ड्राइव अटैच होते हैं और वो क्या होता है दैट ड्राइव विल बी द लीड स्क्रू ओके समझ रहे हो ना तो ये तो बहुत बार बता चुके इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है सो these are the short forms of those MCU कि करता क्या है मशीन कंट्रोल यूनिट करता क्या है दिस इज सिंपली अ हार्ट ऑफ CNC मशीन without MCU we cannot operate at all. So it is used to perform the following information. What are those? Read the coded instructions, decode coded instruction, then implement it to the interpolation to axis generate motion command, then feedback axis motion command to amplifier circuit for driving the axis mechanism, receive the feedback signal of the position and the speed of each drive. फिर क्या करता है इंप्लीमेंट करता है ऑक्सिलरी कंट्रोल फंक्शन जैसे ऑक्सिलरी कंट्रोल फंक्शन में हमने बताया था आपको कूलेंट ऑन ऑफ हो गया ऑक्सिलरी कंट्रोल फंक्शन में बताया था मैंने आपको कूलेंट का ऑन होना ऑफ होना ये सारा स्पिंडल ऑन होना स्पिंडल ऑफ होना टूल चेंज होना ये सारा कुछ राइट इज इट ऑडिबल ऑल ऑफ यू प्लीज Yes, Yes, sir. sir. okay okay so now I'm talking about the classification of the NC system. Okay, in short I have explained earlier. So according to the type of machine, if you'll see according to the type of machine, this is of two types, point to point positioning and the contiguous. According to the structure of the control circuit, that is the analog and the digital, right? Analog and the digital. So according to the programming system, it is the incremental and the absolute. This is, this is very important from our aspect. This is very important for our aspect. Okay, this is very important for our aspect. Can you tell me? Yeah. So according to this
this is the incremental, and this is the absolute, right? And according to the type of control loop unit, open loop control system and closed loop control system. This is what open loop flow system, open loop control system, and the closed loop control system, right? Okay, so I'm going to discuss one by one. Just a minute. I'm going to discuss one by one. Okay. Just a minute. Invoicing is key. How do we erase it? Yeah. This is the सर उसमें होगा शायद इरेज। yes, we have. Okay, so come to the next. Now I'm talking about point-to-point system. Let us suppose I already told you, if you are talking about the drilling system, if you are talking about the drilling machine, so drilling machine works on that. Drilling machine works on what? Point-to-point methodology. Okay, so the approach of drilling machine is point-to-point. So point-to-point system is what I told you. The example is drilling machine. So the workpiece is moved. Simple. Just keep in the mind. Workpiece is moved with respect to the cutting tool until arriving at the numerically defined position, and then motion is stopped. Okay. So the cutting tool performs its job when the axes are without in motion. The cutting tool performs its job when the axes are without motion, and this system requires only position loops for controlling the final position of the tool when reaching the place of it to be drilled, right? So the path from the starting point to the final position is not controlled. So the data for the desired position is given by coordinate value, and the resolution depends on the system. I'm repeating again, just keep in the mind. The simplest example of point-to-point is drilling machine, right? Okay, drilling machine. In drilling machine, you know, the workpiece is moved along the axis of the motion. Okay, until the center of the hole to be drilled is exactly beneath the drill. Okay, then the drill is automatically moved towards the work. See, just let me complete. Then I will ask. Okay, so then the drill is automatically moved towards the workpiece. The hole is drilled, and the drill moves out in a rapid traverse field. The workpiece moves to a new position, and the above sequence of the actions will be repeated again and again. So in general, if I will ask, point-to-point operation will be what? Point-to-point operation will be what? The workpiece is moved with respect to the cutting tool until it arrives at the numerically defined position, right? And then the motion is stopped, the cutting tool is performed the required task, and the with the axis must be stationary. Axis क्या होना चाहिए? बिल्कुल stationary होना चाहिए. So upon completion of the task, the workpiece moves to the next point of the cycle is repeated. See, point to point पे ध्यान. Some Ankit, you are asking something. मैं पूछ रहा था अभिषेक. Abhishek. Yes sir. Yeah, what are you asking? सर मैं पूछ रहा था कि मतलब इसमें लिखा है कि वर्कपीस मतलब उसके रिस्पेक्ट में मूव करता है, तो मतलब देखा जाए तो हमने तो जैसे ये देखा ड्रिलिंग मशीन में टूल मूव करता है उसकी तरफ एक तरफ. हाँ, ड्रिलिंग मशीन इन मैनुअल मोड. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑटोमेशन. हमें जैसे कन्वेंशनल मशीन की बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द कन्वेंशनल ड्रिलिंग मशीन में वर्क टेबल इज फिक्स्ड. Work table is fixed, and your tool is going to be moved. Okay, tool is mounted on the spindle. The drill bit is mounted to the spindle, and if you are applying force to the arm, so the arm will comes down and they will drill a hole. But that is for the single point application. That is not for the multiple drilling machine. Multiple drilling. This is for the single drilling operation. Because once we are going to hold the workpiece on the platform, we are going to hold the workpiece on the work holding. उसको क्या बोलते हैं लोग? फिक्सचर बोलते हैं. एक बार हम लोग फिक्सचर पे उसको कस देते हैं,
और फिक्सर पे लगाने के बाद वो ड्रिल कंप्लीट होने के बाद खोल के फिर दूसरा सेटिंग लगाते हैं. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑटोमेटेड मल्टीपल ड्रिलिंग मशीन. लेट अस सपोज वी आर असाइंड टू drill the 4 number of hole in a square bar, square plate. एक स्क्वायर प्लेट है, उसमें हमें 4 ड्रिलिंग करना है. तो हम क्या करते हैं, आप ध्यान रखिएगा, पीटीपी बोलते हैं इसको, पॉइंट टू पॉइंट को बोलते हैं हम लोग इन शॉर्ट पीटीपी मशीन भाषा में. ठीक है, उसमें क्या करते हैं, प्लीज. ओके, सो व्हाट मम्मी की रोटी. सो व्हाट आई सेड कि पीटीपी में क्या होता है बच्चे. Yes, who just be mute. I'm not willing to distract you. Please mute the background. Please mute the background. Who has opened? From where it sound came? सर विभू के साइड से. बेटे उसको म्यूट कर दो. Okay, so what I'm telling, P2P बोलते हैं इसको, पॉइंट टू पॉइंट एप्लीकेशन. लेट अस सपोज वी हैव असाइंड अ जॉब. एक स्क्वायर सीट है हमारे पास और हमने बोला कि उसमें 4 ड्रिल करना है आपको. सो हाउ डू यू परफॉर्म दिस. So how do you perform this? The NC machine works on NC machine works on what? You know, NC machine works on what? NC machine works on the coordinate geometry. Okay, so you will assign the path for them. You are getting what I'm telling? You will assign the path for them. You are getting my cursor on the screen, Kaustubh? Yes sir. सर वो सर थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है तो क्लियर नहीं हो पा रहा. बैकग्राउंड से आ रहा है ना. रुक जाओ 1 मिनट. सर आप म्यूट ऑल कर दो. हाँ वही कर रहा हूँ. मम्मी आ जाओ. हेलो. हेलो. या hello. Yeah, so I must tell you, you just have to listen it. Okay, what I'm talking about, point to point jab drilling operation. Let us suppose we are having a square sheet and we assigned to drill a 4 drill of the equal diameter, 4 drill of equal diameter of the varying diameters. Okay, so in that case we are having the program. We are talking about to work with the CNC machine. CNC में क्या होता है, उसकी ड्राइंग दी रहती है और ड्राइंग में हम लोग कोऑर्डिनेट्स ड्रिल 1, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. So how do we assign them? By the coordinate we will assign them. By coordinate we are going to assign them. Coordinate बताते हैं कि P1 का coordinate क्या है 10, 20, P2 का coordinate क्या है, P3 का coordinate क्या है, P4 का coordinate क्या है. और अकॉर्डिंगली हमारा टूल क्या करता है, अकॉर्डिंगली हमारा वर्क टेबल जो होता है, जो जिस पे हम लोग पिक्चर्स के ऊपर रखते हैं, वो मूव करता है और बारी बारी से ड्रिलिंग हो जाती है. ओके, बारी बारी से ड्रिलिंग होती है. सो ड्रिलिंग में क्या होता है, जैसे आपने असाइन दिया एक्स एक्सिस के ऊपर 10 और वाई एक्सिस के ऊपर 10, तो दे विल डायरेक्टली गोज टू द P1 पोजीशन. ओके, एंड यू नो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या कोड होता है, G00 के कहाँ यूज करते हैं, G01 का कहाँ यूज करते हैं. तो हमेशा ध्यान में रखिए कि पीटीपी सिस्टम में आप ध्यान रखिए द पाथ ऑफ द कटिंग टूल and its feed rate while traveling from one point to the next point are without any significance. Therefore, you just keep in the mind the system would require only position counters for controlling the final position of the tool upon reaching the point where drill has to be done. Right? So अब क्या करोगे, एक ड्रिल हुआ, एक ड्रिल पे ड्रिल करने के बाद फिर क्या चले जाएंगे, दूसरे पोजीशन पे चले जाएंगे, फिर कहाँ चले जाएंगे, तीसरे पोजीशन पे चले जाएंगे, फिर कहाँ चले जाएंगे, 4th पोजीशन पे चले जाएंगे, और चारों ड्रिल होने के बाद रिटर्न बैक टू द होम पोजीशन. अब कंटूर सिस्टम की बात करेंगे अगर, तो इसी को बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस पाथ सिस्टम. कंटूरिंग में मतलब आप जानते होंगे, कंटूरिंग का मतलब क्या होता है, आप कह सकते हो कि दिस इज अ कंटूरिंग इज अ कंटिन्यूअस पाथ सिस्टम. सो इसमें क्या होता है कि इसका एक मिलिंग मशीन इसका बेस्ट एग्जांपल है. कंटूरिंग सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल क्या है,
मिलिंग मशीन इसका बेस्ट एग्जांपल है. ओके, लेट अस सपोज द टूल इज कटिंग while the axis motions are moving, axis of motion are moving. अगर एग्जांपल के तौर पर अगर मिलिंग मशीन की बात करें तो सारे एक्सिस क्या होते हैं? All axis of motion might move simultaneously and each at a different velocity, right? When a non-linear path is required, the axial velocity will change even within the segment. For example, cutting a circular. For example, if you are talking about cutting a circular, if you are talking about cutting a circular contour, required sine rate change in one axis, while the velocity of the other axis is changed at the cosine rate, right? So the all axes of motion might move simultaneously, each one at different speed. The speed might be changed within the path between the two given points, right? So the path, okay, so the path of cutting tool and the feed establish the desired contour of the path, while feed also affect the surface finish. So position loop control as well as the velocity loop control are both are required in case of the milling machine, right? So the dimensional information given in the interpolation function is used to obtain the intermediate data point. Intermediate data point. You are getting? Hello. सर आप प्लीज हिंदी में समझा पाओगे? मैं मतलब इंग्लिश में कम समझ पाता हूँ. तो मैं बेटा कोशिश तो कर ही रहा हूँ हिंदी में बोलने का. देखो ध्यान रखिए आप, पॉइंट टू पॉइंट एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ. डोंट एक्सपेक्ट सो इन हिंदी ओनली. ओके, you are final year student, okay, and even we were instructed by the management, do not repeat in Hindi and all, so we are avoiding all those things. Okay, anyway, पॉइंट टू पॉइंट देखो हमने बताया क्लासिफिकेशन एनसी मशीन का पॉइंट टू पॉइंट और कंटूरिंग के बारे में बता रहा था. तो आपको हमने बताया कि पॉइंट टू पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट में जैसे ड्रिलिंग करनी है, हमारे पास कोई सीट है या कोई वर्क पीस है और उसके अंदर 4 ड्रिलिंग करनी है या 5 ड्रिलिंग करनी है या मल्टीपल ड्रिलिंग करनी है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वर्क पीस को होल्ड कर देते हैं और वर्क पीस मूव करता है और अकॉर्डिंगली उस पर ड्रिल हो जाता है. ठीक है, ड्रिलिंग में पॉइंट टू पॉइंट में क्या होता है, P1, P2, P3, P4. लेट अस सपोज वी आर हैविंग द 4 होल, 4 होल करना है जिसका कोऑर्डिनेट है P1, P2, P3 एंड P4. और चारों का जानते हैं आपको कि एनसी मशीन और सीएनसी मशीन किस पे वर्क करता है, तो सीएनसी मशीन वर्क करता है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वर्क करने की वजह से हमें क्या होता है, हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है. तो मान लीजिए P1 का कोऑर्डिनेट है 10 और 20, P2 का कोऑर्डिनेट है 20 और 30, P3 का कोऑर्डिनेट ऐसे ही कुछ है, P4 का कोऑर्डिनेट ऐसे ही कुछ है. तो हम लोग क्या करेंगे कि टूल बारी बारी से जाएगा, ड्रिलिंग करेगा, फिर रिट्रैक्ट होगा, फिर P2 पोजीशन पे जाएगा, फिर रिट्रैक्ट होगा, वन बाय वन वो सारे पॉइंट को ऑन करेगा. तो इसको हम लोग बोलते हैं पीटीपी. ये क्या करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम बोलते हैं इसको, पीटीपी मशीन और पीटीपी सिस्टम. ठीक है. और कंटूरिंग में हम लोग क्या बोलते हैं कि कंटूरिंग में क्या होता है कि जैसे मिलिंग मशीन का आप लोग देखे होंगे एग्जांपल. कंटूरिंग में आप ध्यान रखिए, कंटूरिंग को ही बोलते हैं कंटिन्यूअस पाथ मोशन. ओके, इसमें क्या करते हैं कि जो आप ध्यान रखिएगा, कटिंग टूल इज कंट्रोल्ड व्हाइल द एक्सिस ऑफ मोशन आर मूविंग. जैसे मिलिंग मशीन में हम लोग क्या करते हैं, आप पता है कि एक एक्सिस के अंदर मिलिंग करना है. ओके, एक एक्सिस के अंदर मिलिंग करना है. लेट अस सपोज हमें कोई लीनियर पाथ फॉलो करना है, तो एग्जैक्टली हम लोग लीनियर पाथ फॉलो नहीं कर पाते हैं. ठीक है, हम लोग एग्जैक्टली क्या करते हैं, लीनियर पाथ तो फॉलो नहीं कर पाते हैं. तो लीनियर पाथ में जो स्मॉल एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा. इन कंटूरिंग मशीन, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कंटूरिंग मशीन, तो कंटूरिंग मशीन में क्या होता है, position of all cutting tool at the end of each segment together with the ratio between the axial velocity, they will determine the desired contour of the part. And at the same time, the resultant field also affect the surface finish. मतलब आप समझो कि हमें क्या करना है, हमें 30 डिग्री के ऊपर मिलिंग करनी है. ठीक है, तो हमारा कटर मूव करेगा 30 डिग्री के ऊपर. ठीक है, अगर हम कटर मूव करता है हमारा, सो अकॉर्डिंगली जो डिजायर्ड पाथ है उसको हम लोग अटेंड नहीं कर पाते. किसी भी मशीन के लिए डिजायर्ड पाथ को अटेंड कर पाना डिफिकल्ट होता है, ये आप लोग को पता है. तो हम लोग क्या करते हैं उस केस में क्या करते हैं,
हम लोग उस केस में क्या करते हैं कि उस जो करेक्ट पाथ होता है और जो पाथ हम फॉलो करते हैं, दोनों के बीच में जो छोटा सा एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है, दैट इज कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ द एरर। तो आप ध्यान रखिए कि कंटूरिंग सिस्टम होता है वो मिलिंग के लिए सबसे पॉपुलर है, और पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम जो होता है वो ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए एडॉप्टेड है। वो ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए क्या है, एडॉप्टेड है। क्लियर है? हेलो सर ड्रिलिंग के अलावा और कुछ हो सकता है सर? बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, अभी आगे बताऊंगा। ये सारी चीजें ना बेटे आप प्रोग्रामिंग के लिए बचा के रखो, प्रोग्रामिंग जब करेंगे ना तो सारा कुछ क्लियर होगा। आप देखिए, सी दिस डायग्राम, आई थिंक दिस विल हेल्प दैट मच टू मेक यू क्लियर। सी दिस डायग्राम, देयर आर द 5 मेथड ऑफ इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन के 5 मेथड्स होते हैं। व्हाट आर दोज? लीनियर मेथड होता है, सर्कुलर होता है, हेलिकल होता है, पैराबोलिक होता है, क्यूबिक होता है। ठीक है, ये 5 मेथड्स होते हैं इंटरपोलेशंस के। So the all contouring control provide linear interpolation. ठीक है, and most control are capable of both linear and circular interpolation. Let us suppose हमें सर्कुलर चीज बनाना है तो वहां क्या होगा, सर्कुलर इंटरपोलेशन होगा। हमें हेलिक्स बनाना है, पैराबोलिक बनाना है, क्यूबिक बनाना है। तो ये सारे इंडस्ट्रीज में अलग अलग ऑपरेशंस के लिए मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, अलग अलग ऑपरेशन के मैन्युफैक्चर यूज करते हैं। बट ओके, जिसका मान लो कॉम्प्लेक्स शेप है, जैसे एरोस्पेस का कोई कंपोनेंट है, ठीक है, डाई है कार बॉडीज का, ये सारे बनाने हैं तो कहीं क्या करना पड़ेगा, कहीं सर्कुलर होगा, कहीं लीनियर होगा। तो आप देखिए पहले डायग्राम में देखिए, ये दिस इज डायग्राम 2 एक्सिस लीनियर इंटरपोलेशन की बात कर रहे हैं। अगर इंटरपोलेशन की बात करें तो आप देखिए दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, राइट? इफ यू दिस इज ए स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, फ्रॉम वेयर द कटर स्टार्ट। This is the starting point from where the cutter start cutting. Okay, so the path traced by cutter will be this, and this is the end point of the operation. This is the end point of the operation. Just a minute, please. Just a minute. Hello. Okay, so the all controlling control provides the linear interpolation, and most of the control are capable of both. जितना मोस्ट ऑफ द कंट्रोल्स है वो कैपेबल है लिनियर के लिए भी, सर्कुलर के लिए भी। हेलिकल, पैराबोलिक एंड क्यूबिक इंटरपोलेशंस आर यूज्ड इन इंडस्ट्री दैट मैन्युफैक्चर द पार्ट्स व्हिच हैव द कॉम्प्लेक्स शेप सच एज द एरोस्पेस पार्ट्स एंड द डाई फॉर द कार बॉडी। ये देखो सर्कुलर इंटरपोलेशन है। अंकित, अभिषेक, हेलो। यस सर, देख रहा हूँ। हाँ, ये देखो बेटा, ये क्या है, दिस इज अ सेंटर एंड दिस इज हैविंग द सम रेडियस। Okay, so this is the starting point. Let us suppose we are interpolated with the circular path. We are interpolated with the circular interpolation. So cutter will move in a circular path. Let us suppose हमें टूथ के लिए कट करना है, समझ रहे हो आप? हमें टीथ बनाने के लिए आप लोग रैक देखे हो और पिनियन देखे हो, तो पिनियन हमें मान लो कि पिनियन हमें बनाना है और पिनियन के ऊपर टीथ काटने, तो हम क्या करेंगे, कटर उस सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर होगा, सेंटर से समवॉट रेडियस लेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसा हमें डिस्क बनाना है, और क्या करेंगे, कटर विल स्टार्ट मूविंग इन दैट पाथ। द पाथ ट्रेस्ड बाय द कटर इज द सर्कुलर इंटरपोलेटेड पाथ, ओके, एंड दिस इज द स्टार्ट पॉइंट, दिस इज द एंड पॉइंट, ओके। so this will be the circular interpolation, this will be the circular interpolation, ओके। और सर्कुलर शेप में क्या करेगा, कटर यहाँ से मूव करना शुरू करेगा, कटर काट करके और सर्कुल दे दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हॉविंग मशीन पे ले जाके और इसके ऊपर क्या करेंगे, टीथ काटेंगे। टीथ काटने के बाद ये पिनियन हो जाएगा, टीथ काटने के बाद ये पिनियन हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई सेड यू, दिस इज द लीनियर इंटरपोलेशन एंड दिस इज व्हाट द सर्कुलर इंटरपोलेशन। So for the use of the circular interpolation and five method of interpolations, any complex geometry, any complex shape can be sketched or can be manufactured. Okay, so come to the next. We are talking about the analog and the digital control system. So earlier days we are using the analog system. Nowadays all are the digital. Okay, so analog and the digital control system. So I must tell you the quantity is varied continuously in analogous system. Analog में क्या होता है,
कंटिन्यूअसली क्वांटिटी वेरी करता है, जबकि इट वेरीज डिस्क्रिटली इन डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम में क्या करते हैं, एक समय के बाद वो रीडिंग क्या हो जाता है, एकदम कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन एनालॉग सिस्टम में क्या होता है, कंटिन्यूअसली उसमें वेरिंग होता है। आप देखते होंगे जितनी भी मेजरमेंट मशीन्स हैं, आप एनालॉग का देखते होंगे और डिजिटल का देखते होंगे। डिजिटल बहुत जल्दी कांस्टेंट हो जाता है, और एनालॉग में क्या होता है, हर बार आप पकड़ोगे, हर बार वैल्यू अलग अलग होगा, हर बार पकड़ोगे, हर बार वैल्यू अलग होगा। अगर पर्सन टू पर्सन चेंज करते हो तो अलग अलग पर्सन के पास अलग अलग उसके वैल्यू जाएंगे। So the accuracy of digital system is higher. Of course, digital system is having the higher accuracy, right? So the input to the NC system is always digital. Input of the NC system is always digital because the dimensions are given in the numerical form. इसीलिए तो इसको बोला गया न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, डायमेंशन को न्यूमेरिक्स के फॉर्म में देते हैं, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में देते हैं, राइट? सो द आउटपुट ऑफ द एनसी मशीन इज ऑलवेज एनालॉगस। आउटपुट ऑफ द इनपुट हमेशा डिजिटल होता है, जस्ट कीप इन द माइंड, input is always digital. Input is always digital in NC machine because that all has been given to dimensional form, numerical forms, right? So the output of the NC machine is always analogous. As the slide of the machine tools are moving in a continuous and a smooth form. So the movement of the slides होगा, जब movement of the slide होगा, that will be the analogous. That will be the analogous, right? So that each system that contains the analogous and the digital information. So each system type contains an analogous as well as the digital information unit. But the type of control, whether analog or digital, is differentiated by what? Differentiated by the type of information appearing at the control loop input, right? So the sequence of pulses क्या होगा? What are the sequence of pulses? That must be the digital. And what are the continuous input? That may be the analogous. So that is what analogous and the digital system. This is what the analogous and the digital system. अब देखो सबसे important what I'm going to talking now. You are getting? Is it audible to all of you? Yes, sir. Okay, this is very important for you to write a program because this is greatly used in the programming. When we are going in coming week, we will join programming classes. So in programming classes, this is very important for all of us. Okay, incremental and absolute system. Just keep in the mind what is incremental system and what is absolute system. Incremental system is one in which the reference point to the next instruction is at the end point of the proceeding operation. इंक्रीमेंटल सिस्टम का ध्यान देखिए, इंक्रीमेंटल सिस्टम में आप ध्यान दीजिएगा कि एन इंक्रीमेंटल सिस्टम इज वन इन विच द रेफरेंस पॉइंट टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज द एंड पॉइंट ऑफ द प्रीसीडिंग ऑपरेशंस। जैसे मैंने क्या बताया, हमें ए से डी तक जाना है, ठीक है, हमें ए से डी तक जाना है। तो हमने क्या किया कि हर मान लो कि ए से शुरू हुआ, एक स्टैंड बी है, एक स्टैंड सी है, एक स्टैंड डी है, तो तीनों के बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। तो व्हेन वी स्टार्टिंग फ्रॉम ए, तो ए से जैसे चले बी तक पहुंचे, ठीक है, एंड ऑन बी, ए से बी का बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 2 मीटर है, ठीक है, या 200 mm है। और जैसे आप बी से चलेंगे तो वी विल नॉट टेक दो डिस्टेंस फ्रॉम द ए, सो बी इज द लास्ट एंड पॉइंट फ्रॉम दैट। और बी से सी की दूरी क्या होगी, तो वो ही लिखेंगे हम, न कि हम सारा डिस्टेंस ए से लेंगे। मतलब हर समय हमारा रेफरेंस बदलते रहेगा। और रेफरेंस क्या होगा, रेफरेंस हमेशा रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट क्या होगा बताइए, एंड पॉइंट ऑफ द प्रीसीडिंग ऑपरेशन। पिछले ऑपरेशन का जो एंड पॉइंट होगा वो रेफरेंस पॉइंट नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए होगा। तो मतलब समझ लीजिए कि ए से हमें जेड तक जाना है, तो ए से बी की दूरी अगर 2 mm है, ठीक है, तो बी से सी के बीच का दूरी क्या होगा, 2 mm। और एब्सोल्यूट में क्या करते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट सिस्टम में क्या करते हैं, सारे डायमेंशन in absolute system all the dimension must be taken from the same reference। एक ही रेफरेंस से सारे डायमेंशन को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। just keep in the mind each dimension data is applied to the system as a distance increment measured from preceding point at which the axis of the measure is present। लेकिन absolute system में क्या होता है, all position given in absolute distance from one reference point which is called the origin। उसको क्या कहते हैं, origin कहते हैं और 0 point कहते हैं। समझ आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। हम लोग क्या करते हैं कि हम ध्यान रखिएगा, इंक्रीमेंटल सिस्टम में क्या होता है,
इंक्रीमेंटल सिस्टम में क्या होता है कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एंड पॉइंट होता है वो, मतलब समझ लीजिए कि रेफरेंस पॉइंट जो होता है फर्स्ट का जो एंड पॉइंट होगा वो नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मतलब जैसे ए से बी के बीच दूरी जो है, तो अगला दूरी हम ए से नहीं लेंगे, बी से लेंगे, समझ गए? तो एंड पॉइंट उसके लिए क्या हो जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा। किसी भी ऑपरेशन का जो एंड पॉइंट होगा उसके लिए रेफरेंस हो जाएगा, फिर उसके नेक्स्ट उसका जो एंड पॉइंट होगा नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए रेफरेंस होगा। लेकिन एब्सोल्यूट सिस्टम में क्या होगा, एब्सोल्यूट सिस्टम में एक ही पॉइंट से सारे डिस्टेंस लिए जाएंगे। मतलब अगर जीरो पोजीशन, उसी को हम लोग बोलते हैं कि ओरिजिन बोलते हैं या जीरो पोजीशन बोलते हैं, मतलब एक जीरो पोजीशन से सारे डिस्टेंस लिए जाएंगे। क्लियर है? सो द जीरो पॉइंट में भी डिफाइंड है, ध्यान रखिएगा, द जीरो पॉइंट में भी डिफाइंड है आउटसाइड द वर्कपीस। जीरो पोजीशन को डिफाइन कौन करता है, प्रोग्रामर करता है। प्रोग्रामर या तो उसको वर्कपीस के आउटसाइड करेगा, या एट द कॉर्नर पार्ट ऑफ द वर्कपीस करेगा, या पॉइंट ऑन द फिक्सचर, और चाहे एक पार्टिकुलर पॉइंट फिक्सचर के ऊपर मार्क करेगा जिसको वो जीरो पॉइंट करेगा, और पॉइंट ऑन द मशीन टेबल, या मशीन टेबल के ऊपर कोई एक पॉइंट होगा उसको मार्क करके कहेगा ये जीरो पॉइंट है, ये जीरो पॉइंट है। जनरली क्या करते हैं, ज्यादातर प्रोग्रामर क्या करते हैं कि जो फिक्सचर्स का जो जीरो पोजीशन किसको लेते हैं, जो वर्कपीस का कॉर्नर होता है उसको जीरो पोजीशन लेते हैं, या आपका जो फिक्सचर्स होता है, फिक्सचर्स का जो कॉर्नर होता है उसको जीरो पॉइंट लेते हैं। ओके, सो द जीरो पॉइंट में भी आइदर फिक्स्ड और द फ्लोटिंग पॉइंट। जीरो पॉइंट क्या होगा, या तो फिक्स्ड होगा या फ्लोटिंग होगा। क्लियर? जीरो पॉइंट में भी फिक्स्ड पॉइंट और द फ्लोटिंग पॉइंट। तो फ्लोटिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, अब फ्लोटिंग जीरो अलाउज द सिलेक्शन ऑफ एन आर्बिट्रेरी द जीरो रेफरेंस पॉइंट एनीवेयर विद इन द लिमिट्स ऑफ द मशीन टूल टेबल। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब होता है कि कहीं भी आप जीरो रेफरेंस ले सकते हैं, एनीवेयर विद इन द लिमिट ऑफ मशीन टूल टेबल। मशीन टूल टेबल पे कहीं भी आप रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है, कहीं भी मशीन टूल टेबल पे आपकी जहां मर्जी हो वहां रेफरेंस दे सकते हैं। दैट इज व्हाट द फ्लोटिंग जीरो पॉइंट। और फिक्स पॉइंट क्या होता है, फिक्स पॉइंट मतलब आपका पॉइंट फिक्स है, उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जीरो पॉइंट में भी आइदर फिक्स्ड और द फ्लोटिंग पॉइंट। और फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है कि पूरे मशीन टूल टेबल पे उसके लिमिट के अंदर कोई भी पॉइंट आप जीरो रेफरेंस के रूप में यूज कर सकते हैं। So the closed unit does not retain the information of the previous location, right? So the NC system can have the zero offset system in which the zero point can be shifted at any point of the machine tool table. So zero point ऐसा कोई फिक्स नहीं है, वो आपकी मर्जी है। मशीन टूल टेबल पे कहीं भी जीरो पॉइंट को लोकेट कर सकते हो। So the control unit retains the information of the location of the fixed zero. So the main advantage of the absolute system over the incremental system is that in case of interruptions like tool breakage, manual interference, etc., the machine table can be moved manually and the interruption can be eliminated. So जो main advantage absolute system का है incremental के ऊपर, वो वही है कि अगर कोई भी इंटरप्शन होता है, मान लो टूल ब्रेक कर गया या मैनुअल कोई इंटरफेरेंस है, उस केस में मशीन टेबल को मैनुअली मूव कराना पड़ता है। कहाँ तक? एंड द इंटरप्शन कैन बी एलिमिनेटेड। मैनुअली मूव कराना पड़ता है होम पोजीशन तक, मूव करा के, और उसमें जो इंटरप्शन कॉज होता है उसको क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। गॉट इट व्हाट आई सेड? क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखना है कि जीरो पॉइंट जो होता है, जीरो पॉइंट को कहीं भी हम जीरो पॉइंट में भी डिफाइंड एज क्या लिख सकते हो, अ पॉइंट आउटसाइड द वर्कपीस, या उसको कह सकते हो एट द कॉर्नर ऑफ द वर्कपीस, ठीक है, कहीं भी कह सकते हो, ठीक है। या कह सकते हो कि अगर वो फिक्सचर पे रखा हुआ है तो आप लिख सकते हो द कॉर्नर ऑफ द फिक्सचर्स, ठीक है। वो सारे क्या होते हैं, जीरो पॉइंट होते हैं। और जीरो पॉइंट क्या हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है। अब फ्लोटिंग पॉइंट हमने बता दिया, हमने बताया ना कि जीरो फ्लोटिंग पॉइंट ऑलवेज अलाउ ऑपरेटर बाय पुशिंग अ बटन टू सिलेक्ट आर्बिट्रली एनी पॉइंट विद इन द लिमिट ऑफ द मशीन टूल, ठीक है, क्लियर है। तो इन चीजों का प्रोग्रामिंग में बहुत इस्तेमाल है, इनका प्रोग्रामिंग में बहुत इस्तेमाल है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग सिस्टम लेते हैं। एब्सोल्यूट डायमेंशन में आपको ये प्रोग्राम में पहले बताना होगा कि आप कौन सा प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं। सी दिस डायग्राम, व्हेन द प्रोग्राम इज रीस्टार्ट द टेबल ऑटोमेटिकली मूव्स टू इट्स लास्ट पोजीशन।
when program को restart करते हैं, so the table is automatically moved to the last position and the operation processed from the same point where it was interrupted. अब क्या करते हैं, मैन्युअली वहां तक ले जाते हैं होम पोजीशन तक, और फिर मशीन को हम लोग क्या करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं. तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली सारे प्रोसेस करते हुए जहां से इंटरप्शन हुआ था वहां अपने आप पहुंच जाता है और फिर प्रोसेस करता है. और इन इंक्रीमेंटल सिस्टम इफ प्रोग्राम इज रीस्टार्टेड, इंक्रीमेंटल सिस्टम एक एब्सोल्युटली कहानी बताया मैंने. इंक्रीमेंटल में क्या होता है कि इंक्रीमेंटल सिस्टम इफ प्रोग्राम इज रीस्टार्टेड आफ्टर इंटरप्शन, द टूल मस्ट बी ब्रॉट मैन्युअली टू द exact last position, which is cumbersome and force the operator to restart the program from starting and repeat all those operations. समझ लो क्या बोल रहा हूँ मैं. इंक्रीमेंटल सिस्टम में क्या होता है कि अगर कोई इंटरप्शन हुआ या कोई परेशानी उसमें हुई, तो उसमें क्या करता है कि टूल को लास्ट पोजीशन तक, एग्जैक्टली लास्ट पोजीशन तक ले जाना पड़ता है, और लास्ट पोजीशन तक ले जाना बहुत डिफिकल्ट है. और उसके बाद क्या करता है, ऑपरेटर जब रीस्टार्ट करता है प्रोग्राम को, तो वो सारे ऑपरेशन जो पहले हो चुके होते हैं वो रिपीट होते हुए कंप्लीट करता है, तो टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाता है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग सिस्टम. यहाँ पे देखिए आप लोग, this diagram is representing the absolute dimension system. Why? Because all the distance has been taken from the fixed reference. ये this is the fixed reference from which from here to here this is 1 inch, then 2.5, then 3.5, then 5, then 6, then 7.5, 8.5. So all dimensions has been taken from the fixed reference, and this is the diagram for the incremental dimensioning. You will see from here. यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें. So this is the last, this is the end point of the first operation. So this must be the reference for the next operation. The end point is the end point must be the reference for the end point. देख रहे हैं ना, आपको समझ में आ रहा है. यहाँ से यहाँ तक किया, the end point is acting as a reference for the next operation. Then the end point of next operation is the reference for the next operation. तो देख रहे हैं, this is the incremental dimensioning and this is the absolute dimensioning. I think nobody is having any doubt in that regard. You are getting or not? Yes, sir. Clear hai? So incremental systems are not generally used for controlling point-to-point motion. Okay, if our motion is point to point, then we are not going to adopt the incremental system. Okay, but incremental controllers are cheap to build. It is very cheap for us. Incremental center is very cheap to build. Okay. सर इंक्रीमेंटल सिस्टम, डायमेंशन सिस्टम कौन सी मशीन में यूज होता है बेटा? इंक्रीमेंट मशीन तो दोनों को फॉलो करता है. यू हैव टू स्पेसिफाई इन द बिगिनिंग ऑफ द जब प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे तो फर्स्ट लाइन में ही आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी डायमेंशनिंग आपने यूज कर रहे हैं, कौन सी डायमेंशनिंग आप यूज कर रहे हैं. ये आपको फर्स्ट लाइन में ही बता देना होगा कि आप एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग कर रहे हैं कि इंक्रीमेंटल डायमेंशनिंग यूज कर रहे हैं. तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा कि एब्सोल्यूट डायमेंशनिंग के लिए और इंक्रीमेंटल डायमेंशनिंग के लिए आपके पास कोड्स होते हैं जो हमने बताया था आपको, जी कोड एंड द एम कोड. अगर जैसे हम मान लीजिए एब्सोल्यूट डायमेंशनल प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं तो उसके लिए G90 यूज करेंगे, एंड इंक्रीमेंटल यूज कर रहे हैं तो G91 यूज करेंगे. तो जैसे आपने G90 यूज किया मतलब सारे डायमेंशन जो लेगा मशीन वो क्या लेगा, एब्सोल्यूट मोड में लेगा. G91 कर लिया मतलब ऑल डायमेंशंस मस्ट बी टेकन एज अ incremental system. Clear hai? And the last we are talking for the classification of the NC system. Classification of the NC system on the basis of the open loop control system and the closed loop control system. If you are talking about the open loop control system, मतलब एक शब्द में समझिए कि open loop control system है, they are not having any feedback. So the control system step motors are used. Open loop की बात कर रहा हूँ. This is the block diagram. We have given the input to the controller. Controller pass on the signal to process, and after process completed, we are getting the output. This is the open loop control system. There is no any phenomenon of giving the feedback. Now we are talking about the closed loop control system. If you see this diagram, we are providing the input to the controller. Controller pass on the control signal to the for the process, and process has been governed. Process has been done.
Okay, after attending the desired process, okay, the signal is sent into the measuring element. Measuring element will measure whether the desired output is achieved or not. If desired output is achieved, then send those signal to the controller. Yes, operation has been done successfully. Go ahead, right? Go ahead. So in open loop control system, there is no any feedback policy. So step motors are driven by electric pulses, and every pulse rotates the motor spindle. Every pulse rotates the motor spindle through a certain amount, and by counting the pulses, the amount of motion can be controlled. There is no any feedback signal or any kind of error corrections, and lower positioning accuracy. So in open loop control system, lower positional accuracy is very low. And now we are talking about the closed loop control system. Closed loop control system. So closed loop control system, DC or AC motor are used. Both may be used. So the position transistors are used to generate the position feedback signal or error correction. They are having the better accuracy, and this is more expensive. This system is more expensive, and this is suitable for the large size machine too. This is suitable for the large size machine too. So this is all about the open loop control system and the closed loop control system. Open loop control system and the सर लेथ मशीन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हो सकता है? हाँ, let machine. Of course. All conventional machine are open loop control system, because after getting a process, only operator come to know कि हाँ process complete हो गया, सही तरीके से complete हो गया. आपको मैं बताता हूँ, just keep in the mind. आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि the closed loop control measure the actual position and velocity of the axis, right? And they will what? Yes, they will compare both of them with the desired reference. कि हमें जो आउटपुट मिला है वो डिजायर्ड रेफरेंस को मैच कर रहा है कि नहीं मिल रहा है. ओके, एंड द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द डिजायर्ड वैल्यू इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एरर. मान लो हमें एक्चुअल में जो मिला और जो डिजायर्ड था, अगर दोनों एक नहीं है तो दोनों के बीच क्या होगा? दोनों के बीच एरर ऑकर होगा. ठीक है. सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? The control is designed in such a way that to eliminate, or you can say to reduce minimum error. उसी को हम लोग बोलते हैं कि निगेटिव फीडबैक टाइप है. ये क्या है? निगेटिव फीडबैक टाइप. अगर हम बात करें, आपको लेथ मशीन की बात करें, जैसे आप बोल रहे थे, तो लेथ मशीन की अगर हम बात करते हैं तो आप क्या करते हैं? जैसे आप क्या करते हैं? पल्सेटिंग इनपुट देते हैं. ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में देखिए, यहाँ पे ये देखिए, ये दिया आपने पल्सेटिंग इनपुट दिया. किसको? स्टेपिंग मोटर को दिया. स्टेपिंग मोटर से क्या जुड़ा होता है? मोटर से गियर जुड़ा होता है, और गियर से क्या जुड़ा होता है? लीड स्क्रू. और लीड स्क्रू के ऊपर क्या होता है? टूल पोस्ट लगा रहता है, वो मूव करता है. ठीक है. अब ऐसे ही आप क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है? पल्सेटिंग इनपुट देते हैं. वहां क्या रहता है? पल्सेटिंग इनपुट के जस्ट बाद कंपैरेटर लगा रहता है. यहाँ इसमें नहीं है, इस ब्लॉक डायग्राम में पल्सेटिंग इनपुट के जस्ट बाद क्या रहता है? कंपैरेटर लगा रहता है. और कंपैरेटर क्या करता है? एरर को एग्जामिन कर लेता है. और वो किसको करता है? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर को भेजता है. और वो क्या करता है? उसको डीसी मोटर में भेजता है. और डीसी मोटर से क्या जुड़ा रहता है? गियर जुड़ा रहता है. और गियर किससे जुड़ा रहता है? गियर कहाँ ट्रांसमिट करता है? लीड स्क्रू से जुड़ा रहता है. और लीड स्क्रू के मोशन पे क्या माउंट रहता है? टेबल माउंट रहता है. तो लीड स्क्रू पे ही लगा देता है वो इनकोडर. और वो इनकोडर क्या करता है? बताइए. वो इनकोडर वहां से सिग्नल को कहाँ कर देता है? इनकोडर का काम क्या है? द रेट ऑफ पल्सेस पर मिनट प्रोवाइडेड बाय इनकोडर इज प्रोपोर्शनल टू द रिवॉल्यूशन पर मिनट ऑफ द लीड स्क्रू. मतलब समझ गए इनकोडर का क्या काम है? इनकोडर का क्या काम है? एक देखिए कितना पल्स हुआ, मतलब रेट ऑफ पल्स पर मिनट प्रोवाइड. और कौन प्रोवाइड करता है पल्स? द रेट ऑफ पल्स पर मिनट विच इज प्रोवाइडेड बाय इनकोडर, which is proportional to what? Proportional to revolution per minute. Revolution per minute of the lead screw. एक रिवोल्यूशन में लीड स्क्रू कितने पल्स, मतलब किस रेट से वो पर मिनट वो मूव कर रहा है ना, दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं. सो ध्यान रखिएगा, द रेट ऑफ पल्सेस पर मिनट प्रोवाइडेड बाय द इनकोडर इज प्रोपोर्शनल टू द रिवोल्यूशन पर मिनट ऑफ द लीड स्क्रू.
revolution per minute of the lead screw. आपको BLU का मतलब पता होगा, बेसिक लेंथ यूनिट बोलते हैं BLU को, हम लोग क्या बोलते हैं? यस सर, बेसिक लेंथ यूनिट आप लोग पढ़े होंगे कंट्रोल सिस्टम में। तो एनसी मशीन में हमेशा समझिए कि इन एनसी मशीन सिस्टम बोथ इनपुट टू द कंट्रोल लूप एंड फीडबैक सिग्नल मे बी अ सीक्वेंस ऑफ पल्सेस, that may be the sequence of pulses, and each pulse representing BLU unit. BLU unit मतलब समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज एक बार मूव कर रहा है तो कितना मूव कर रहा है? 0.001 सॉरी 0.01 mm, समझ रहे हो? सो द डिजिटल कंपैरेटर क्या करता है, और कंपैरेटर का काम क्या होता है जानते हैं? आपको पढ़ा चुका हूं। डिजिटल कंपैरेटर जो लगा रहता है वो क्या करता है? कोरिलेट करता है दोनों सीक्वेंस को, एक तरह का हाइट गेज होता है। हाँ, दोनों सीक्वेंस को कोरिलेट करता है और गिव क्या करता है? बाय मींस ऑफ ए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, इसीलिए मैंने बताया कंपैरेटर होता है, कंपैरेटर के बाद डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगा रहता है। ठीक है, और वो सिग्नल रिप्रेजेंट करता है उसके पोजीशन में जो एरर होगा उसको करता है। ठीक है, तो सेम टेक्नोलॉजी हम लोग यूज करते हैं डीसी सर्वो मोटर को ड्राइव करने के लिए। और जो हमने बताया जो इनकोडर लगा रहता है ना, ये कुछ नहीं होता है, एक रोटेटिंग डिस्क होता है जो कई सेगमेंट में बटा होता है। ठीक है, और कई सेगमेंट में बटा रहता है, और उसपे क्या होता है? अल्टरनेटली वो ओपेक होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। एक ओपेक होगा, एक ट्रांसपेरेंट, एक ओपेक एक ट्रांसपेरेंट। मतलब बहुत सेगमेंट में बटने का मतलब यही होता है कि एक ओपेक होगा, एक ट्रांसपेरेंट, एक ओपेक होगा, एक ट्रांसपेरेंट। समझ रहे हो ना? तो अब उसपे क्या होता है? जब ओपेक होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, मैकेनिज्म ध्यान रखना। ओपेक और ट्रांसपेरेंट से क्या मतलब है कि जो फोटो सेल होता है, ए फोटो सेल एंड ए लैंप आर प्लेस्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द डिस्क। डिस्क के दोनों साइड में लैंप रखा रहता है जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट होता है। ठीक है ना? और वो क्या करता है? डिस्क के दोनों साइड उस लैंप को रख देते हैं, फोटो सेल के लैंप को रख देते हैं। और जब डिस्क रोटेट करता है, समझ रहे हो ना, जब भी डिस्क जब रोटेट करेगा तो every change in light intensity will falling on what? Falling on the photocell. This will provide the output pulse. क्या होगा? एक बार ट्रांसपेरेंट होगा, एक बार ओपेक होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, ओपेक होगा। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ है? एक और लैंप रखे हुए हैं और दूसरे ओर फोटोसेल रखे हुए हैं, और बीच में क्या है? डिस्क है। समझ गए? एक और फोटोसेल है, दूसरे ओर लैंप है। ठीक है, और बीच में क्या है? डिस्क है। जैसे डिस्क रोटेट होगा, so each change in light intensity will falling on what? Falling on the photocell, and this will provide an output pulse. तो इसीलिए हमने बोला कि the rate of pulse per minute provided by encoder is proportional to the revolution of each revolution of the lead screw. Revolution per minute of lead screw. So with this, I'm going to end my lecture today. Okay, and we are looking for attendance now.